Hello, myself Kamlesh Tiwari sir from Bright Skills Educator, and you are watching recorded lectures of Science 2. Today we are going to discuss about the first lesson of Science 2. It is heredity and evolution. Hello students, this is your first lesson, heredity and evolution. And very first thing we will discuss about the RNA and DNA. What is RNA? RNA is ribonucleic acid. Both the topics RNA and DNA we have done in 9th standard. So again a short review of these two things. RNA. Actually there are three types of RNA. First one is the ribosomal RNA, and it is denoted by small r RNA, and its function is protein synthesis. So ribosomal RNA does the synthesis of the protein. Second one is messenger RNA. Second one is the messenger RNA. Messenger RNA. What is the function of messenger RNA? Messenger RNA carries the information for protein synthesis from genes to the ribosome. Again, मैसेंजर RNA क्या करता है? ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन ये जीन्स से लेके कहाँ पे पहुँचाता है? रिबोसोम्स को पहुँचाता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ मैसेंजर RNA. अब ये जीन क्या होता है? इट इज़ अ DNA सेगमेंट इन द न्यूक्लियस. जीन क्या होता है? DNA सेगमेंट इन द न्यूक्लियस. और रिबोसोम कहाँ पर होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है, सेल में. You must know about the cells. There is a nucleus, then there is a cytoplasm where cell organelles are just floating. तो फिर से मैसेंजर RNA का फंक्शन क्या है? ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन जीन्स से लेता है और इसको कहाँ तक पहुँचाता है? रिबोसोम तक पहुँचाता है. जीन DNA सेगमेंट होता है और रिबोसोम कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. इतना समझ में आ गया? तो जस्ट सी दिस वन. एंड द थर्ड टाइप ऑफ RNA इज tRNA. tRNA मीन्स ट्रांसफर RNA. tRNA मीन्स ट्रांसफर RNA. व्हाट इज द ट्रांसफर RNA? ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर करना. ये क्या करता है? जो अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड इज यूज्ड टू मेक द प्रोटीन्स. जो अमीनो एसिड बनता है उसको क्या करता है? कैरीज अमीनो एसिड अप टू द रिबोसोम अकॉर्डिंग टू मैसेज ऑफ mRNA. mRNA के मैसेज के अकॉर्डिंग, mRNA के मैसेज के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को कहाँ तक लेके जाता है? रिबोसोम तक लेके जाता है. सो ये तीनों फंक्शंस हो गए. rRNA, रिबोसोमल RNA यूज टू synthesis of protein. mRNA, messenger RNA, it carries the information for protein synthesis from genes to ribosome. And third one is the tRNA, that is transfer RNA. It carries amino acid up to the ribosomes according to the message of mRNA. You understood about RNA? See all these three things. Now structure of DNA. Structure of DNA, you can see here. DNA full form is deoxyribonucleic acid. If you see carefully in the diagram of DNA, there are two strands of nucleotides. There are two strands of nucleotides. Student, this is DNA. Two strands. One is this one and second one is this one. There are two strands of nucleotides. These strands of nucleotides are made of nitrogen base, pentose sugar and phosphoric acid. These nucleotides are made up of nitrogen base, pentose sugar and phosphoric acid. They are the chemical things, chemical compounds. And what is the nitrogen base? Nitrogen bases are purines and pyrimidines. See carefully. Nitrogen bases are purines and pyrimidines. What is purine?
Purine is the adenine and guanine. Purines are adenine and guanine, and pyrimidines are thiamine and cytosine. They are the nitrogen bases. And ध्यान से देखना, इनका जो बेस पेयर होता है, एडेनाइन किसके साथ पेयर करता है? थायामाइन के साथ. एडेनाइन किसके साथ पेयर करता है? थायामाइन के साथ. और एडेनाइन थायामाइन के साथ पेयर करके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. एडेनाइन किसके साथ पेयर करता है? थायामाइन के साथ, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर बनाता है. और जो गुआनाइन होता है वो किसके साथ पेयर करता है? साइटोसाइन के साथ. सो ऑलवेज रिमेंबर, A pairs with T and G pairs with C. AT and GC. इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो. AT and GC. एडेनाइन, जब हम लोग ट्रांजिशन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन स्टडी करेंगे तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. एडेनाइन किसके साथ पेयर करता है? थायामाइन के साथ. गुआनाइन किसके साथ पेयर करता है? साइटोसाइन के साथ. एडेनाइन और थायामाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और गुआनाइन और साइटोसाइन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द डीएनए. सी केयरफुली. Students, again we will discuss about the structure of RNA. RNA means ribonucleic acid, single व्हाट इज आरएनए? देखो, डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है, और जो आरएनए में होता है सिंगल स्ट्रैंड्स होता है न्यूक्लियोटाइड्स का. देखो, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड इस तरह से रहता है, ये आरएनए होता है. अब ध्यान देना, आरएनए में प्यूराइंस और पैरामिडाइंस होते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ डीएनए. तो प्यूराइंस क्या होता है? एडेनाइन एंड गुआनाइन, दैट इज एजी. और पैराइन क्या होता है? इसमें क्या होता है? यूरासिल होता है. पैरामिडाइंस में क्या होता है? यूरासिल एंड साइटोसाइन. तो हियर इन आरएनए, एडेनाइन पेयर्स विथ गुआनाइन एंड पैरामिडाइंस क्या होता है? यूरासिल एंड साइटोसाइन. एक चीज याद रखना है स्टूडेंट्स, बेस पेयरिंग आरएनए में क्या होता है? एडेनाइन विथ यूरासिल. बेस पेयरिंग क्या होता है? एडेनाइन विथ यूरासिल और गुआनाइन विथ साइटोसाइन. याद रखना, जिस तरह से डीएनए में पेयरिंग था उसी तरह से आरएनए में भी बेस पेयरिंग है. आरएनए में बेस पेयरिंग क्या है? एडेनाइन विथ यूरासिल एंड गुआनाइन विथ साइटोसाइन. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. अगेन वी आर रिपीटिंग इट. एमआरएनए, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए टू रिबोसोम. डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन से ये प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन लेके कहाँ पे जाता है? रिबोसोम्स. और रिबोसोम्स कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. आरएनए, इट इज रिबोसोमल आरएनए. इट इज कंपोनेंट ऑफ रिबोसोम विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. और आरएनए क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स बनाने में, प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करने में वो क्या करता है? आरएनए उसका हेल्प करता है. और टीआरएनए, एज यू नो, ट्रांसफर आरएनए, इट कैरीज अमीनो एसिड टू द रिबोसोम्स अकॉर्डिंग टू मैसेज ऑफ द एमआरएनए. एमआरएनए जो भी मैसेज देगा उसके मैसेज के अकॉर्डिंग टीआरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड को कहाँ पे लेके जाता है? रिबोसोम्स के पास लेके जाता है. यू अंडरस्टूड दिस वन? You can note down it. Now students, we are going to start the transcription, translocation and translation. अब देखो, अभी हम लोगों ने बोला कि जो इन्फॉर्मेशन होते हैं जीन्स के थ्रू ये कहाँ पे लेके जाता है? राइबोसोम्स में जाता है. वहाँ पे प्रोटीन्स जो ट्रांसफर आरएनए होता है मैसेज देता है अकॉर्डिंग टू एमआरएनए. वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड. अब ये सब प्रोसेस कैसे होता है? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. फर्स्ट थिंग इज ट्रांसक्रिप्शन. स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, बिफोर ट्रांसक्रिप्शन लेट अस डिस्कस अबाउट द सेंट्रल डोग्मा. व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा? इंफॉर्मेशन अबाउट
प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर्ड इन द डीएनए। डीएनए बेसिक यूनिट होता है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो कहाँ पे स्टोर रहता है? डीएनए के अंदर रहता है। और वो जो इंफॉर्मेशन है, और ये जो इंफॉर्मेशन है, इट इज कॉल्ड ए सेंट्रल डोग्मा। अगेन, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। इन अदर वर्ड्स, proteins are synthesized by DNA through RNA. Proteins are synthesized by DNA through RNA. मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस अल्टीमेटली डीएनए ही करता है, बट किसके द्वारा करता है? आरएनए के थ्रू करता है। तो आपने सेंट्रल डोग्मा समझा? इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर्ड इन द आरएनए, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। ओके। और डीएनए के अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन, डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन रहते हैं वो जीन्स के अंदर रहते हैं, और यही इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस का रिबोसोम्स तक लेके जाता है। कौन? मैसेंजर आरएनए। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या है। वेरी शॉर्ट, द प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया था, डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 हेलोइड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये जो होता है उससे जो आरएनए फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वेरी सिंपल वर्ड, डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। समझ में आया? डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अदर वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नाउ ट्रांसलेशन। अब देखो ट्रांसलेशन क्या होता है। आरएनए के द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन होता कैसे है, बहुत ध्यान समझना। mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. Only one of the 2 strands of DNA is used in this process. जैसा कि मैंने बताया था, डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए में जीन्स होता है, जीन्स में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हो वो एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइटोप्लाज्म में लेके जाता है। ओके। अब डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड्स रहते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंड यूज होता है एमआरएनए के फॉर्मेशन में। वो एमआरएनए का फॉर्मेशन में जो कोडेड जो एक सीक्वेंस होता है, ध्यान से देखना, ये जीन्स के 2 स्ट्रैंड्स है, मैंने सिंपल बनाया है। ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, देखो, ए फॉर एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, थायामाइन, साइटोसाइन, ग्वानाइन, एडेनाइन। इसी तरह से यूरासिल। अब देखो, ए से एडेनाइन से यूरासिल बन रहा है, ग्वानाइन किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये जो है एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट है, एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट यूरासिल है, गुआनाइन का कॉम्प्लीमेंट साइटोसाइन है, साइटोसाइन का कॉम्प्लीमेंट गुआनाइन है, थायामाइन का कॉम्प्लीमेंट एडेनाइन है, अगेन थायानाइन का एडेनाइन, साइटोसाइन का गुआनाइन, गुआनाइन साइटोसाइन, एडेनाइन यूरासिल। अब देखो, ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड इज यूज्ड। अब देखो, ये डीएनए से क्या फॉर्म हुआ? एमआरएनए। सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए इज डिटरमाइंड बाय डीएनए। ये आरएनए का सीक्वेंस है, ध्यान देना ये, और ये डीएनए का सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए इज डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ध्यान देना। और जो एमआरएनए का सीक्वेंस होता है वो डीएनए के सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है, वो डीएनए के सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी आपने पेयरिंग देखा था ना, डीएनए पेयरिंग, उसमें ये आरएनए का पेयरिंग, एडेनाइन का यूरासिल होता है, गुआनाइन का साइटोसाइन होता है, साइटोसाइन का गुआनाइन होता है। इस तरह से ये पूरा पेयर बनता है, ठीक है ना।
तो अब देखो ये जो प्रोसेस है डीएनए स्ट्रैंड सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। वेरी केयरफुली, ये जो है ट्रांजिशन हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए स्ट्रैंड में जो भी है उसके कॉम्प्लीमेंट से क्या बनता है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एमआरएनए में सिंगल स्ट्रैंड्स होता है। तो यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पर हैं। तो ध्यान देना, सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, इट इज डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ डीएनए। और जो एमआरएनए का सीक्वेंस होता है वो डीएनए के सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये हो गया। अब यहां पर डायग्राम देखिए, ये डीएनए है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए में देखो 2 स्ट्रैंड्स हैं और यहां से जो एमआरएनए में है सिंगल स्ट्रैंड्स है। तो डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और यहां से जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है वो ट्रांसलोकेशन। हम आगे देखते, सॉरी ट्रांसलेशन। ध्यान से देखना पूरा ये डायग्राम्स, ध्यान से देख के लो, सी इट वेरी केयरफुली। Okay, let us move forward. Now see this sequence DNA mRNA. DNA में क्या है, गुआनाइन है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, साइटोसाइन है। थायामाइन का कॉम्प्लीमेंट क्या है mRNA में, एडेनाइन है। एडेनाइन का यूरासिल है, एडेनाइन का यूरासिल, गुआनाइन साइटोसाइन, साइटोसाइन गुआनाइन, थायामाइन एडेनाइन, साइटोसाइन गुआनाइन। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री. So strands of mRNA is complementary of strands of DNA. So in other words you can say sequence of mRNA is complementary of sequence of DNA. So these are the complementary sequence of mRNA and it is complementary of DNA. From this you can get it better. Students, अभी हम लोगों ने देखा ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। डीएनए से किसका फॉर्मेशन हुआ, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन देखेंगे। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जो भी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का होता है किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। देखो ये पूरा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है और जो एमआरएनए है ये क्या होता है, इसका जो कोडेड मैसेज होता है, एमआरएनए में देखो कोडेड मैसेज था ना, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो एमआरएनए में कोडेड मैसेज होता है, ये पूरी चीजें जो कोडेड मैसेज ऑफ एमआरएनए इज ब्रॉट टू द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब देखो, द एमआरएनए ब्रिंग्स कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। एमआरएनए यहाँ पे बना न्यूक्लियस के अंदर, और ये कोडेड मैसेज एमआरएनए से कहाँ पर लेके आना है, वो कहाँ पे आता है, साइटोप्लाज्म में। किसके पास लेके आता है, राइबोसोम्स के पास लेके आता है। दिस मैसेज कंटेन्स कोडेड दिस मैसेज कंटेन्स कोड्स फॉर अमीनो एसिड। ये जो कोड्स होते हैं, जो एमआरएनए के अंदर कोड्स होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, वो मैसेज होता है अमीनो एसिड का। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे। अमीनो एसिड्स आर मेनी टाइप्स, ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड के कोड्स होते हैं एमआरएनए में, और ये जो कोड होता है इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये जो कोड होता है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। ध्यान से देखना, द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स।
द कोड्स न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, वही ग्यूएनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, ये सब क्या है, दे ऑल आर न्यूक्लियोटाइड्स. The code for each amino acid consists of 3 nucleotides. It is called as triplet codon. These are the short definitions. एग्जाम में आ सकता है, what is central dogma, what is triplet codon, what is transcription, what is translation, like that. अब ध्यान से देखना, हम लोग ये ट्रिपलेट कोडॉन के कोड्स ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देना. पहला है कोडॉन 1, दैट इज GCU. G for guanine, C for cytosine, U for uracil. ACG, adenine, cytosine, guanine. GAG, guanine, adenine, guanine. CUU, that is cytosine, uracil, uracil. CGG, that is cytosine, guanine, guanine. एंड सो फॉर. इस तरह से बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन्स बनते हैं. ये जो सारे ट्रिपलेट कोडॉन के मैसेज हैं वो mRNA में होते हैं. ये और ये सबसे जितने भी ट्रिपलेट कोडॉन हैं सब अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं. समझ में आया? फिर से एक बार, ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है. न्यूक्लियस में से जो डीएनए में डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है. मैसेंजर आरएनए में जो फॉर्मेशन होता है उसमें अमीनो एसिड्स के कोड्स होते हैं. उस अमीनो एसिड्स के कोड को ट्रांसफर आरएनए के हेल्प से वो कहाँ पे आता है, साइटोप्लाज्म में आता है. साइटोप्लाज्म में किसके पास आता है, रिबोसोम्स के पास आता है. और ये जो प्रोसेस होता है इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. ये जो कोड्स होते हैं वो ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड्स के रूप फॉर्म में होते हैं. मतलब इसमें ईच अमीनो एसिड में जितने भी होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ईच न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन्स 3 कोड्स एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन. The codes for each amino acid consist of 3 nucleotides and it is called as triplet codon. These are some examples of triplet codon. Understood? और उसके बाद में हमारे जो साइंटिस्ट, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने अराउंड 20 अमीनो एसिड्स के ट्रिपलेट कोडॉन्स डिस्कवर किए थे. अराउंड 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के ट्रिपलेट कोडॉन इन्होंने डिस्कवर किया था. बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट द नोबेल प्राइज. अब देखो ध्यान से, mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन. यहाँ पे तो कुछ ट्रिपलेट कोडॉन मैंने दिए हैं, बट जो mRNA होता है ना उसमें बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, अलग अलग कोड्स के होते हैं. मेनी टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स के कोड होते हैं. ठीक है, तो mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन. एज पर द मैसेज ऑफ mRNA, tRNA सप्लाइज अमीनो एसिड. mRNA में जो ट्रिपलेट कोडॉन्स होता है उसके अकॉर्डिंग जो tRNA होता है वो जो मैसेज होता है वो किसको सप्लाई करता है, अमीनो एसिड को. ये अमीनो एसिड कहाँ पे सप्लाई होता है, ये अमीनो एसिड राइबोसोम्स को सप्लाई होता है. फिर से देखना, एज पर द मैसेज ऑफ mRNA tRNA सप्लाई अमीनो एसिड्स. tRNA क्या करता है, अमीनो एसिड सप्लाई करता है. कहाँ पे होता है ये मैसेज, mRNA में होता है. किस फॉर्म में होता है, ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में होता है. ईच ट्रिपलेट कोडॉन्स में अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं और ये पूरा मैसेज जो होता है वो tRNA सप्लाई करता है. समझ में आ गया? और इसके लिए जो है, फिर से देखना, जीन्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स थे उसके कॉम्प्लीमेंट्री थे mRNA में. अब जो mRNA में जो भी रहते हैं उसके जो मैसेज होते हैं, जो कोड्स होते हैं, उसके एंटी कोड्स होते हैं tRNA में. जो tRNA सप्लाई कर रहा है ना मैसेज, उसमें एंटी कोड्स होते हैं. जितने भी होते हैं एंटी कोड्स होते हैं और एवरी एंटी कोड्स का एक अलग टाइप का अमीनो एसिड्स होता है. अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं.
Anticodon, for this purpose tRNA has anticodons. Anticodon is complementary sequence of triplet codon. ये ट्रिपलेट कोडॉन किसका कॉम्प्लीमेंट्री था? जीन्स में जो थे उससे एमआरएनए बना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री से. अब इस ट्रिपलेट कोडॉन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो क्या होता है? एंटीकोडॉन होता है. और ये एंटीकोडॉन कहाँ पे होता है? टीआरएनए के अंदर होता है. और ये जो प्रोसेस होता है ट्रिपलेट कोडॉन से एंटीकोडॉन का फॉर्मेशन, बहुत ध्यान समझना, ट्रिपलेट कोडॉन से एंटीकोडॉन का फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. समझ में आ गया ट्रांसलेशन क्या होता है? फिर से एक बार हम लोग देखेंगे इसको. ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. अब जब एमआरएनए फॉर्म हो जाता है तो एमआरएनए के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कोड्स होते हैं. दीज कोड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, राइट? एंड आफ्टर दैट दिस एमआरएनए ब्रिंग्स coded message from DNA, and this message contains codes of amino acid. The code for each amino acid consists 3 nucleotides. The code for each amino acid के हर कोड में 3 nucleotides होते हैं और it is called as triplet codon. And there are many pairs of triplet codons. Actually in mRNA thousands of triplet codons are there. Okay, and around 20 amino acid triplet codon was discovered by Dr. Hargobind Khurana. After that mRNA is made up of thousands of triplet codon. बहुत ध्यान समझना, mRNA is made up of thousands of triplet codon. As per message of mRNA, mRNA के मैसेज के अकॉर्डिंग tRNA जो होता है वो अमीनो एसिड सप्लाई करता है. tRNA सप्लाई अमीनो एसिड, और इस पर्पज के लिए tRNA जो अमीनो एसिड सप्लाई कर रहा है, इस पर्पज के लिए tRNA के पास क्या होता है? एंटीकोडॉन होता है. tRNA के पास क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए के पास क्या होता है? एंटीकोडॉन होता है. और ये जो एंटीकोडॉन होता है ये ट्रिपलेट कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है. टीआरएनए के पास जो एंटीकोडॉन होता है वो ट्रिपलेट कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है. उसके लिए जो ट्रिपलेट कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन का फॉर्मेशन होता है, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. ध्यान से देखना, कोडॉन्स क्या है यहां पर देखिए. कोडॉन AUF, ऑल यू नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ AUNG, एडेनाइन, यूरासिल, गुनाइन, और UAC, यूरासिल, एडेनाइन, साइटोसाइन. ये जो होता है, ये जो कोडॉन है, एक्चुअली मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर. तो हर टाइप के अमीनो एसिड्स के जो कोडॉन होते हैं वो अलग अलग होते हैं. दिस वन इज द मिथियोनिन कोडॉन. मिथियोनिन कोडॉन का जो एंटीकोडॉन है UAC, इसके थ्रू प्रोटीन फॉर्मेशन होता है. कोडॉन के थ्रू जो एंटीकोडॉन बनता है, उसी एंटीकोडॉन जो कोडॉन होता है, एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड, उससे जो एंटीकोडॉन बनता है उसी एंटीकोडॉन से क्या फॉर्म होता है? अमीनो एसिड, प्रोटीन फॉर्म होता है. तो ये पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस है. स्टूडेंट्स, अब ट्रांसलेशन हो गया. अब उसके बाद आता है ट्रांसलोकेशन. अब देखो क्या होता है. टीआरएनए जो है ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. टीआरएनए जो होता है वो जो लेके आता है वो पेप्टाइड बॉन्ड से होता है. टीआरएनए कौन सा अमीनो एसिड ले आ रहा है? एंटीकोडॉन के फॉर्म में ला रहा है. अब आपने पिछले टॉपिक में देखा. यहां पर ध्यान से देखो, AUG, दिस इज द ट्रिपलेट कोडॉन. ध्यान देना,
ये ट्रिपलेट कोडॉन से क्या बना, एंटीकोडॉन्स बना। अब ये जो ट्रिपलेट कोडॉन्स, हर ट्रिपलेट कोडॉन का अलग अलग अमीनो एसिड होता है। फॉर एग्जांपल AUG का मेथियोनिन है, ये सेकेंड ट्रिपलेट कोडॉन है, इससे जो बनेगा उसका अमीनो एसिड सपोज X टाइप का अमीनो एसिड है, इसका Y टाइप का अमीनो एसिड है, इसका Z टाइप का अमीनो एसिड है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर। और ये जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर बॉन्डेड बाय पेप्टाइड्स। ये जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं किससे बॉन्डेड रहते हैं, पेप्टाइड से बॉन्डेड रहते हैं। एंड दे आर बॉन्डेड बाय पेप्टाइड एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड्स। और ये किसके हेल्प से बनते हैं, RNA, राइबोसोमल RNA के हेल्प से। क्योंकि ये जो ट्रांसफर RNA कहाँ पे लेके आ रहा है मैसेजेस को, राइबोसोमल RNA के पास ले आ रहा है। तो ऑल दीज ट्रिपलेट कोडॉन्स, ऑल दीज अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ rRNA। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिबोसोम्स कीप्स ऑन मूविंग। इस प्रोसेस में जो रिबोसोम्स होता है ना, ये मूव करते रहता है सिंगल सिंगल के डिस्टेंस में, इस तरह से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से वो मूव करता रहता है। During this process, ribosomes keeps on moving from one end of mRNA to another end by the distance of one triplet codon. ये देखो ये पूरा mRNA है यहाँ से यहाँ तक। तो जब ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्ड हो जाते हैं। उसके बाद में ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है बाय वन डिस्टेंस ये मूव होने लगता है फ्रॉम वन एंड, यहाँ से समझो मूव होना स्टार्ट हुआ, धीरे 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 वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड ऑफ द mRNA, डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। और ये जो मोमेंट का प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। समझा ट्रांसलोकेशन क्या होता है। अगेन tRNA brings amino acids are bonded by peptide bonds। जो tRNA अमीनो एसिड लेके आता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, रिबोसोम्स के पास। वो जो रिबोसोम्स के पास आता है वो जितने भी अमीनो एसिड से होते हैं, जो सभी अमीनो एसिड, देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। जैसे ये पहले टाइप का अमीनो एसिड है, दूसरे टाइप का, इससे तीसरे टाइप का बना, इससे चौथे टाइप का बना। ये जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें हेल्प कौन करता है, rRNA, रिबोसोमल RNA हेल्प करता है। उसके बाद में जब ये प्रोसेस हो जाता है, जब बॉन्ड हो जाता है, तो ये रिबोसोम्स के अंदर हो जाते हैं और ये बाय वन डिस्टेंस ट्रिपलेट कोडॉन वन एंड से दूसरे एंड तक मूव करना स्टार्ट करते हैं बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। मतलब यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ से ये निकला, इसकी जगह पे ये आ गया, फिर ये इसकी जगह पे ये आ गया, यहाँ से चल के ये यहाँ पर आ गया, फिर इससे यहाँ से ये यहाँ पे आ गया। मतलब सभी वन वन डिस्टेंस मूव हो रहे हैं। और ये जो है अमीनो एसिड आगे बन रहा है, और ये अमीनो एसिड किसके क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोटीन फॉर्म कर रहा है। ये सभी अमीनो एसिड मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गया। सो सी हियर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिबोसोम्स कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA to other end by the distance of one triplet codon. This process is called as translocation. Students, ribosomes read the information of amino acid. अभी अभी ट्रांसलोकेशन हुआ, मूवमेंट जो हो रहा है, तो वो ट्रिपलेट बॉन्ड जो जितने भी हैं ट्रिपलेट कोडॉन्स वो पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्डेड हैं और दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। वो अमीनो एसिड्स कहाँ पे जाते हैं, रिबोसोम्स के अंदर जाते हैं। और रिबोसोम क्या करता है, उनके अंदर जो एंटीकोडॉन के मैसेजेस हैं, एंटीकोडॉन के मैसेजेस हैं, वो कौन रीड करता है, रिबोसोम्स रीड करता है। वो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उसके मैसेजेस रीड करके उसके अकॉर्डिंग में वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। उसके अकॉर्डिंग में प्रोटीन सिंथेसिस, फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस रिबोसोम्स के अंदर हो रहा है।
और वो इस तरह से आगे बढ़ता रहता है। अंडरस्टूड? ये पूरा प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन का। अब उसके बाद में इन शॉर्ट मेनी प्रोटीन्स, अब जब बहुत सारे प्रोटीन्स बन गए ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में, अब ये बहुत सारे प्रोटीन्स, दे आर सिंपल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ये बहुत सारे प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है, यही प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शंस को सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो कैसे बना? इन शॉर्ट अगेन आई एम सेइंग दैट फर्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, देन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए में जो जीन्स होते हैं उसमें जो कोडेड मैसेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, उससे एमआरएनए फॉर्म होता है। एमआरएनए फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद एमआरएनए में जो कोडेड मैसेज ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में होता है, वो मूव करता है न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में मूव करता है और उसका एंटीकोडॉन बनता है, उसका एंटीकोडॉन बनता है। और जब एंटीकोडॉन बनता है वो क्या होता है? ट्रिपलेट कोडॉन, और एंटीकोडॉन बनता है। ट्रिपलेट कोडॉन इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। और उसके बाद में एमआरएनए के थ्रू वो टीआरएनए सप्लाई करता अमीनो एसिड को, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आ गया। उसके बाद में जब टीआरएनए जो है अमीनो एसिड लेके आता है रिबोसोम्स के पास, तो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड से वो बॉन्ड होते हैं और वो एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड तक आते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और ये जो अमीनो एसिड्स होता है उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इट इज सिंपल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, और आफ्टर दैट this protein formation is called as translocation, and these simple proteins form complex protein, and many complex proteins are formed and they control various functions of our body, they perform various functions of our body। समझ में आ गया? उसके बाद में देखो ध्यान से, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीन्स होता है, वही इंफॉर्मेशन जो है वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग जनरेट होते हैं, मतलब उनके बच्चे पैदा होते हैं। जीन्स आर ट्रांसमिटेड विदाउट एनी चेंजेस। जो जीन्स होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में विदाउट चेंज ट्रांसफर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जीन्स के अंदर जो होते हैं सडन चेंजेस आ जाते हैं, जीन्स के अंदर सडन चेंजेस आ जाते हैं, और ये जो सडन चेंजेस आते हैं ये किसके कारण होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के कारण होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स जीन्स में अपना पोजीशन चेंज कर देता है। न्यूक्लियोटाइड्स जीन्स में अपना पोजीशन चेंज कर देता है। कब? जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और इसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन होता है उसमें कुछ वेरिएशंस फॉर्म होते हैं। और ये जो जीन्स अपना लोकेशन चेंज करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, दिस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। दिस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप्ड इन अ ह्यूमन बॉडी। You must be knowing about the sickle cell anemia and many other genetic disorders, albinisms and some other disorders. These are because of mutation in the genes. This topic is little bit complicated, so see this video again and again and just make your notes, and I am providing this one in PDF form also, and get it properly through the textbook.